if I write dimension formula for work, now it's F dot S. We know that dimension for force is mLt to the power minus 2. mLt to the power minus 2 and displacement का dimension it's L. And hence the dimension for work comes out to be mL square t to the power minus 2. This is the dimension formula for work. Now, if we have a system and it's acted upon by a multiple force system, if we have a system, it's acted upon by a multiple force system, इस पर ढेर सारी फोर्सेस लग रही है एंड under the action of all these forces the body is getting displaced in a particular direction. यह body इस particular direction में displace हो रही है. Now we used to say the work done, the overall or the net work done would be equal to W1 plus W2 and so on up to Wn. W1 is work done by force F1. W2 is work done by force F2. In this manner W3, W4 and Wn. We used to say W1 would be F1 dot S plus W2 would be F2 dot S and so on. In this manner Wn would be Fn dot S. We used to say dot product is distributive. Dot product is distributive. Distribute कर सकते हैं and since it's a distributive हम कह सकते हैं this F1 plus F2 and so on up to Fn. Dot S. Means work done is resultant force dot S. My conclusion is
these two expressions. Let me explain the conclusion of this article. If we have got a force system acting on a particle, यदि एक पार्टिकल पर कोई फोर्स सिस्टम एक्ट करता है, ऑब्जर्व दिस इज अ फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, एंड अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स सिस्टम द पार्टिकल इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ आई विश टू कैलकुलेट द टोटल वर्क, ओवरऑल वर्क, इन सभी फोर्सेस की वजह से होने वाला वर्क. मैं कहता हूं मेरे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका, एक फोर्स की वजह से, एक फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ में डॉट करके एक फोर्स की वजह से वर्क निकालू. W1 निकाल लू, W2 निकाल लू, W3 निकाल लू, Wn निकाल लू. दिस इज वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स. दिस इज W1, वर्क डन बाय फोर्स F1. दिस इज W2, वर्क डन बाय फोर्स F2. W3, W4, Wn. हमने अलग अलग फोर्सेस की वजह से वर्क निकाला, एंड देन ऐड ऑल द वर्क स्केलरली. W1, W2 सभी वर्क को स्केलरली ऐड कर दो. एक तो यह तरीका है. दूसरा तरीका, ऐड ऑल द फोर्सेस वेक्टोरिकली, गेट द रिजल्टेंट फोर्स, ऐड ऑल द फोर्स वेक्टोरिकली. फोर्स का वेक्टर एडिशन कर दीजिए. वेक्टर एडिशन के माध्यम से फोर्स को, सभी फोर्सेस को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल दीजिए, और रिजल्टेंट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट करके गेट द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स. दिस इज द ओवरऑल वर्क डन बाय दिस फोर्स सिस्टम. नाउ अभी तक मैंने जो वर्क डिफाइन करा है, दैट इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. यदि फोर्स कांस्टेंट रहता है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, और डिस्प्लेसमेंट, उसका भी डायरेक्शन फिक्स दिख रहा है, उसका भी मैग्नीट्यूड फिक्स दिख रहा है. बट दिस इज अ स्पेशल केस, दिस इज अ स्पेशल कंडीशन. इफ वी हैव गॉट variable force, it may be variable in magnitude, it may be variable in direction. My next article is work due to done by variable force, due to variable force भी लिख सकता हूं. I can always write due to variable force, or work done by variable force. Now work done due to variable force. Now this variable force may be in magnitude or direction. Now work done due to variable force. Now this variation may be in magnitude and direction. कैसे? अब इस सिचुएशन में when we have got variable physical quantities and we need to operate, we need to deal with such variable physical quantities, we have got the concept of calculus. We have got differential calculus and we have got the concept of integral calculus. Calculus का इस्तेमाल बस इसी सिचुएशन में होता है. हम कहते हैं इस केस में हम we take differential displacement, और उस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के दौरान हम डिफरेंशियल वर्क डिटरमाइन कर लेते हैं. किस तरह से जरा देखिए. हम कहते हैं एट एनी इंस्टेंट इफ दिस इज द फोर्स,
this is the magnitude of force and direction of force at any instant. This is, I'll say, instantaneous force vector. This is instantaneous force vector. किसी भी इंस्टेंट पर फोर्स का यह मैग्नीट्यूड है और यह डायरेक्शन है. अब इस इंस्टेंट पर, एट दिस इंस्टेंट, दिस इज डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट. This ds is we used to say differential displacement at this instant. This is differential displacement at this instant. मैं दोबारा रिकॉल करा दूं. हमने तीन तरह के साइन देख रखे हैं. यह तीन साइन, जब इस तरह से ट्रायंगल बनाया जाता है, इसका मतलब होता है डेल्टा. डेल्टा इस तरह से बनाया जाता है, वी रीड इट एज डेल. डेल. और जब यह इस तरह से बनाया जाता है, दिस इज डी, स्मॉल डी, इसको वी रीड इट एज डी. These are the three signs that we always use. Delta means finite change. This always means finite change. Del always means small change. And D always means differential change. Differential change मतलब a very 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 small change, such small which can never be measured. Differential change. Differential means very 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 small. इतना छोटा जिसको आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते. मैं बताता हूं. यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 50 सेंटीमीटर, यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 50 सेंटीमीटर, तो देखिए 50 सेंटीमीटर को बड़ी आसानी से मेजर करा जा सकता है. इट्स अ मेजरेबल डिस्प्लेसमेंट. इसको हम लिखेंगे डेल्टा एस. एंड जस्ट इमेजिन, यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.005 सेंटीमीटर. अब इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, हम कहते हैं इसको आसानी से मेजर नहीं करा जा सकता. इट्स अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज. बट यू कांट से दैट इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल, जिसको किसी भी कंडीशन में मेजर नहीं करा सकता. वी हैव गॉट मेथड्स, वी हैव गॉट प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस, जिससे इसको मेजर भी कर सकते हैं. तरीके हैं. डायरेक्टली एपरेटस से मेजर नहीं कर सकते, मगर इनडायरेक्टली कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इस डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं. दिस इज डिनोटेड बाय डेल एस. मगर यदि हम कहें 0.000000005 सेंटीमीटर, अब यह इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना कम डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको अब मेजर कर पाना किसी भी तरह से ऑलमोस्ट नामुमकिन है. इट्स वेरी वेरी वेरी, जैसे इनफाइनाइट होता है वेरी लार्ज विच कांट बी मेजर्ड, ऐसे ही होता है इनफाइनेटेसिमल और डिफरेंशियल मींस इतना छोटा, इतना स्मॉल विच कांट बी मेजर्ड. वी डिनोटेड बाय डीएस. यह डीएस की बात कर रहा हूं, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट एट द सिस्टम. इस इंस्टेंट पर बहुत डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट होता है.
दैट इज ds। अब हम कहते हैं at this instant we determine differential work। dw is differential work at this instant by the force due to ds। dw is differential work। dw is read as w को वर्क रीड कर रहे हैं, जैसे dw बोला मीन्स डिफरेंशियल वर्क, मीन्स अ वेरी वेरी स्मॉल वर्क which is done at this instant by this force due to this displacement। We read it like this। Now we used to say this differential work is F dot ds or mod F mod of ds cos of theta, where theta is angle at this instant। Now, in order to calculate the total work over the time period or over the displacement, किसी टाइम पीरियड में किसी डिस्प्लेसमेंट के दौरान टोटल वर्क डिटरमाइन करने के लिए वी यूज टू से द टोटल वर्क इज इंटीग्रल ऑफ dw और द टोटल वर्क इज इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds or the total work is integral of mod f mod of ds cos theta। We used to say this is work done by variable force system। एक वेरिएबल फोर्स सिस्टम है तो उसकी वजह से हम वर्क डन इस तरह से डिटरमाइन करेंगे। मैंने आज आपको वर्क से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताए हैं। खास बात, अभी फिर भी मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स ज्यादा बताई है, एक्सप्रेशंस ज्यादा बताए हैं। अभी कंसेप्ट पार्ट और फंडामेंटल पार्ट, किस तरह से वर्क एनर्जी है, जो मैंने बताया कि व्हेन आई डू सम वर्क ओवर द सिस्टम इट मीन्स आई एम पुटिंग सम एनर्जी इनटू दैट सिस्टम, आई एम एडिंग सम एनर्जी इनटू द सिस्टम। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो भाग है, इसको बड़े एलाबोरेट में मुझको बताना है। इन द कमिंग लेक्चर्स I'll deal with that part only। और मैं आपको मेरे अगले लेक्चर में अब सबसे पहले पावर के बारे में बताऊंगा और फिर एनर्जी के बारे में, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर अलग अलग तरह की एनर्जीज और हाउ टू रिलेट ऑल दिस कंसेप्ट एंड फंडामेंटल्स। आज का लेक्चर मैं यहीं रखता हूं, एग्जैक्टली यहीं से मैं मेरे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा।